Hello students. In my previous lecture, we have discussed about double displacement reaction. बता दिया था कि किस तरह से दो सब्सटेंस जब हम मिलाते हैं या we are taking two solutions, they will exchange their ions. आपस में exchange करते हैं, then that reaction is called as double displacement reaction. Now we are going to study about last reaction, that is redox reaction. See, this is very important reaction. If any students are interested to take science in class 11, you should know this is the basic redox reaction. Now we say name redox. Redox is actually combination of reduction plus oxidation. दोनों चीजें हो रही हैं, reduction and oxidation. Just imagine that you are going out and in the road you just find a 10 rupee note. 10 rupees is very less, you may find 100 rupee note. What will happen? You are benefited by that. So you have gained 100 rupees, but somebody has lost. So there is gain and loss. Similarly, in our reactions also, there will be reduction and oxidation. So, redox reaction, the reaction in which both reduction and oxidation takes place simultaneously. Remember the word simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है उसी समय में. साइमल्टेनियसली दोनों चीजें होती है. तो एक का अगर फायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे का नुकसान हो रहा है. इफ वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, द अदर सब्सटेंस विल गेट reduced. So first you should know what is reduction and what is oxidation. क्या होता है reduction, क्या होता है oxidation. आपके कोर्स में केवल दो चीजें दी हुई है, in terms of oxygen and in terms of electron. So first we will see in terms of oxygen. Oxygen की terms में अगर हम देखें, so what is oxidation? As the name suggests, oxidation is addition of oxygen. Addition of oxygen. अगर किसी सब्सटेंस में या किसी एलिमेंट में हम ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, then that reaction is called as oxidation. Say for example magnesium. इसमें अगर हमने ये ऑक्सीजन ऐड किया, what it will form? Magnesium oxide. So this magnesium is getting oxidized. This reaction is oxidation. यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, सो मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, पर ये ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है? ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये आपका हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसे कहते हैं ऑक्सीडेंट. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ oxygen. So oxidation means what? Addition of oxygen. और reduction क्या हो जाएगा? What is reduction? Reduction is removal of oxygen. यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. अब ऑक्सीजन रिमूव कैसे होगा? Say for example कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ले लिया आपने, तो 2Ca प्लस O2, ऑक्सीजन रिमूव हो गया. या आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो या CO2 ले लो. दिस इज हाउ ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड. तो कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो गया? इट इज रिड्यूस्ड. रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड. एक डेफिनेशन ये होती है. दूसरी डेफिनेशन, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स और ये चार्ज पढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए वी कैन कंपेयर इट विथ चार्ज. नाउ एनी एलिमेंट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट, इट्स चार्ज इज 0.
आपने 9th में पढ़ा एन एटम इट कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है. बट व्हेन इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स or gain electron, it acquire either positive or negative charge. It will form ions. Now in this case you could see magnesium element है, oxygen भी आपका element है, but when these two combine they form magnesium oxide. So what is the charge in this magnesium? It is 0. What about charge on oxygen? 0. But when it form magnesium oxide, मैग्नीशियम पे चार्ज आ गया +2 और ऑक्साइड पे चार्ज है 2 माइनस. तो मैग्नीशियम 0 से +2 हुआ ये. सो इंक्रीज इन चार्ज बढ़ा है यहाँ पर. और ऑक्सीजन का 0 से -2 डिक्रीज इन चार्ज. तो दूसरी डेफिनेशन होती है इन टर्म्स ऑफ चार्ज. Increase in charge is oxidation and decrease in charge is reduction. Decrease in charge is reduction. अब ये increase और decrease कैसे हुआ? 0 से ये +2 कैसे आया? It has given 2 electrons. इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. So loss of electron. Loss of electron is oxidation. And जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए वो किसने ले लिए? ऑक्सीजन ने ले लिए. So gain of electron is reduction. I hope I am not so fast. Easily समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पर आप देखिए in terms of charge or you can call it as electrons. ये 2 डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न होनी है. ठीक है, बेसिकली 2 है, लेकिन मैं आपको 5 डेफिनेशंस बताऊंगी रेडॉक्स की. ये 2 क्लियर है. आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं. जैसे कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या बना रहा है? CO2. ये भी आपका ऑक्सीडेशन ही है. ठीक है, तो कार्बन अभी 0, यहाँ ऑक्सीजन में 0, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो कार्बन पे +4 है और इस पे ऑक्सीजन पे -2, तो चार्ज हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, सो ओवरऑल वी कैन राइट 5 डेफिनेशंस डिपेंडिंग ऑन वेरियस टाइप्स. तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ऑक्सीडेशन, टेबल बना लेंगे, और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सबसे पहला ऑक्सीडेशन में आएगा आपके एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और रिडक्शन में क्या लिखेंगे हम? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अभी बताया ही था आपको. जैसे C+O2 ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बना? CO2. और कॉपर ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, इसको अगर हमने गर्म किया तो जिंक प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल गया. या HgO ले लो, mercuric ऑक्साइड, HgO, तो इसमें आपका Hg अलग हो जाता है, mercury एंड O2, 2Hg. तो ये आपका रिमूवल, इससे रिमूव हो गया ऑक्सीजन. सेकेंड डेफिनेशन, अब क्योंकि हाइड्रोजन है तो सेकेंड डेफिनेशन हम इसे हाइड्रोजन के टर्म्स में लिखेंगे. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर देते हैं तो भी आपका ये होता है. और यहाँ आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे. अब हाइड्रोजन रिमूवल का देखिए आप, HBr ले लिया अगर हमने, इसमें हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं तो इट विल डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड Br2. ब्रोमीन में से हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का चार्ज क्या होता है? -1, -1 से ये 0, वैसे इंक्रीज हुआ है. -1 से 0 हुआ है ये, सो इंक्रीज हुआ है, -1 to 0, दिस इज इंक्रीज. सो इट इज
ऑक्सीडेशन ऐसे। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं H2 plus Cl2 gives HCl. Now what happens here? यहाँ क्लोरीन जीरो से ये -1 हो गया, तो रिडक्शन। ठीक है। तीसरा डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन अगर हम लिखें तो थर्ड डेफिनेशन आएगी आपकी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचने वाले, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो आपके हैं, दीज एलिमेंट्स आर रेडी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करते हैं, मान लीजिए हमारा मैग्नीशियम मेटल है, इसमें अगर हम क्लोरीन गैस डालें तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा आपका। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ एडिशन है तो ऑब्वियसली रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Electronegative element, if we just remove, then what will happen? It is reduction. अब वो reduction भी आपका इसी तरह से होता है, जैसे HGS है, mercuric sulfide, इसमें से आप ये सल्फर अगर हम रिमूव कर दें, so you will get Hg, 2Hg, and sulfur is removed. ऐसा आपका रिमूव हो जाता है किसी भी फॉर्म में हो, या mercury chloride ले लो तो उससे क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। देन फोर्थ डेफिनेशन, चौथी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की थी। अब आप चाहें तो इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या होगा? यहाँ एडिशन है तो ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हम रिमूव कर दे, वी आर जस्ट रिमूविंग एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव में होता है आपके मेटल्स या कैटायंस, जो हमारे कैटायन है हम उसको रिमूव कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एंड हियर यू विल राइट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखिए सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए H2 plus Cl2. In this case, hydrogen is added to chlorine. So what's happening? HCl. Same thing you can write for here also. Addition of electropositive element. यानी कि क्लोरीन में आप हाइड्रोजन की जगह मैग्नीशियम ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? You can take एग्जाम्पल here. एडिशन लेना है ना, Mg, तो क्लोरीन में आपने ये पॉजिटिव लगाया है Mg, जोड़ा तो क्या हो गया? MgCl2. वी आर कंसिडरिंग अबाउट दिस क्लोरीन, इसमें आप ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो व्हाट्स हैपनिंग? क्लोरीन जो जीरो था, जीरो से क्या हो गया है? -1 हो गया है। ठीक है, ये दोनों का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम में आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हो, लेकिन क्लोरीन में आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आप ये HGS वाला ही ले लीजिए या Hg वाला ले लीजिए, HGS, इसमें से अगर हम ये Hg हटा दें तो क्या बचेगा हमारा? सल्फर। सो सल्फर यहाँ पर सल्फाइड -2 है, बट सल्फर हियर इट इज 0। रिमेंबर एलिमेंट इन एलिमेंट्री पोजीशन, जिस स्टेट में वो रहता है, इट्स चार्ज इज 0, उसका चार्ज 0 है। जब आपको अगर यहाँ इक्वेशन ये समझ न आए, देन आवर लास्ट डेफिनेशन, जो हमारी लास्ट डेफिनेशन है वो आपको बताई थी, कौन सी थी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इंक्रीज इन चार्ज पॉजिटिव चार्ज, जनरली पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज होता है। आप जो नंबर लाइन जानते हो, नंबर लाइन में कैसे होता है? यहाँ सेंटर में 0 है और इधर 1 2 3 4 5 इस ढंग से बढ़ता है।
और इस डायरेक्शन में -1, -2, -3। तो इस डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है चार्ज, इट इज इंक्रीज एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। और अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, इट इज रिडक्शन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, सो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, जनरली पॉजिटिव की तरफ। हाँ, -3 से -2 भी हो रहा है, देन ऑल्सो इट इज ऑक्सीडेशन। -3 से 0 भी हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। सो इंक्रीज इन चार्ज इस डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है, इट इज ऑक्सीडेशन। और रिवर्स में अगर है, रिवर्स के लिए लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डिक्रीज इन चार्ज, डिक्रीज इन चार्ज, चार्ज डिक्रीज होता है। अब ये सारे एग्जांपल्स आप एक बार फिर से देख सकते हैं। कार्बन एलिमेंट्री स्टेट में है 0, ऑक्सीजन 0, बट व्हाट हैपेंस, कार्बन 0 से यहाँ आ गया आपका +4, ऑक्सीजन -2। तो कार्बन क्या क्या हुआ है यहाँ, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो कोई भी इक्वेशन, दो आई हैव क्लासिफाइड देम, बट neither of the reaction is single, सिंगल तो पॉसिबल ही नहीं है। Neither oxidation nor reduction can take place individually. They will take place in simultaneously. Simultaneously होगा और दोनों जो है वो एक साथ होंगे। अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का reduction. We can take many more examples. In your book many examples are given. आप वो चाहें तो देख सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे ये जो रेडॉक्स है इसमें आपके कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल आ गया, जिस बताया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन भी है प्लस रेडॉक्स भी। मैग्नीशियम में चार्ज 0, ऑक्सीजन का चार्ज 0, बट व्हेन इट इज फॉर्मिंग +2 -2, मैग्नीशियम से Mg2 प्लस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 0 से -2, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे ही आपका डीकम्पोजिशन हम चाहें तो ले सकते हैं। AgBr 2 मोल्स अगर हम लेते हैं, इट डीकम्पोज टू गिव 2 Ag प्लस Br2, ये बनाएगा। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, Ag प्लस Br माइनस। यहाँ Ag एलिमेंट है 0, ब्रोमीन 0, सो +1 से 0 क्या हुआ इसका, +1 से 0, देखो +1 से 0 क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, सो इट इज रिडक्शन। व्हाट अबाउट -1 से 0, oxidation. So it is combination. Combination can be redox. Decomposition, it can be also redox. अगर डिस्प्लेसमेंट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कॉपर सल्फेट, अगर हम इसमें जिंक डाल दें, व्हाट हैपेंस, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, यही बनेगा आपका कॉपर सल्फेट। इसमें कॉपर पे 2+ और ये आपका सल्फेट 2-, जिंक एलिमेंट है तो 0, जिंक सल्फेट में Zn2+, सल्फेट 2-, कॉपर 0। देखिए सल्फेट में कोई चेंज नहीं है, बट व्हाट अबाउट कॉपर एंड जिंक, कॉपर हैज गिवन 2 electrons, so it has got 2+, जिंक हैज gained 2 electrons and become Zn2+, जिंक ने यहाँ पर Zn2+ बना रहा है। ठीक है, तो कॉपर जो Cu2+ था, इट हैज गिवन इट्स इलेक्ट्रॉन्स, नो इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, एंड जिंक हैज गिवन Zn 0 से +2 हुआ है, तो जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन। व्हाट अबाउट कॉपर, कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रिडक्शन। क्लियर।
तो कॉम्बिनेशन हमारा रेडॉक्स है, डीकम्पोजिशन रेडॉक्स है और डिस्प्लेसमेंट भी रेडॉक्स है. व्हाट अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट? क्या डबल डिस्प्लेसमेंट भी रेडॉक्स हो सकता है? We can take just one or two examples. You have to check whether this is double displacement or not. Take for example sodium chloride. 2 moles लिया हमने. Sorry, sodium sulfate. यही वाला, ये बार बार मैं ये ले रही हूँ ताकि आपको कम से कम 1-2 इक्वेशन अच्छे से लर्न हो जाए. When this is treated with barium chloride, what will happen? Ion exchange. Barium sulfate बनता है PPT. And 2 moles of NaCl aqueous. Now look at the charge. Sodium +1 होता है. चार्ज में ब्लू से लेते ताकि क्लियर है. सोडियम पे +1, सल्फेट आपका एज यूजुअल 2-, बेरियम पे 2+, क्लोराइड का -1. बेरियम 2+, सल्फेट पे 2-, Na+Cl-. अब देखिए सोडियम, here also it is +1. Here also it is +1. Sulfate 2-, 2-, barium 2+, 2+, chloride -. Is there any increase or decrease in charge? No. There is neither increase nor decrease. So double displacement reaction does not behave as redox. यहाँ पर redox नहीं होता है. Combination आपका redox हो सकता है, डीकम्पोजिशन आपका रेडॉक्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका रेडॉक्स हो सकता है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेक प्लेस एज रेडॉक्स. नथिंग इज रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड. व्हाट हैपेंस हियर? सिंपली आयन एक्सचेंज होते हैं. सो आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस. Rest we will discuss in next class. I hope you like my video. Please subscribe my channel. Thank you.